English, first language, standard 5th. Dear student, let us start first chapter of class 5th, that is boundless nature. Boundless nature. Boundless means limitless, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं होती. Okay? Here are some activities we will do now. Activity 1. Nature is boundless in its rich resources. Man uses these resources to create wonders. Identify these natural resources and discuss their usefulness with your partner. Okay students? Here are given 3 pictures that shows natural resources. Okay? Now we have to discuss about 3 natural resources and how do we use these 3 natural resources. Okay? Here in this first picture about sun. Okay? The sun. Okay? The sun is major source of energy. So, as we call solar energy. Solar energy. ओके सन जो एनर्जी है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है जिसको हम सोलार एनर्जी भी बोलते हैं. ओके नाउ सेकंड पॉइंट इज इट इज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. इट इज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. व्हाट इज रिन्यूएबल एनर्जी? इसका मीनिंग क्या होता है? विच मीन्स these sources like sun, wind, water, these sources are always available. okay? जो कभी ख़त्म नहीं होते, जो limitless है. okay? तो उसको बोलते हैं renewable energy. okay student? now third point is we use solar energy to generate electricity. Okay student, sun, the solar energy generate electricity. Okay, the solar energy also used for cooking. Okay, आप सबको पता है कि सोलर कुकर्स के थ्रू हम लोग कुकिंग करते हैं कि नहीं. Okay, let us revise. The sun is major source of energy. That's why as we call solar energy. Okay, it is most important source of renewable energy and we use solar energy to generate electricity and also for cooking. Okay students, now here are second picture. In this picture we shows the windmill. Okay, windmill का क्या यूज होता है? Okay, windmill का यूज होता है कि वो wind energy प्रोड्यूस करता है. Okay, तो second is the wind. Wind is also natural resources. Okay, the wind is also important source of the energy. The wind is also important source of the energy. It is important source of renewable energy. It is also renewable energy. Okay, now third point is in the farm which have many windmills to generate wind energy. Wind energy. Okay, आपने कई सारे फार्म देखे होंगे. कई सारे ऐसे फार्म होते हैं जहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी विंड मिल्स होती है, जैसे कि ये पिक्चर्स में है लाइक दिस. ओके, ये जो पिक्चर्स है वो विंड मिल की पिक्चर्स है, उसके पूरे फार्म होते हैं और वो जो होता है उसमें वो लोग क्या प्रोड्यूस करता है कि वो विंड एनर्जी जनरेट करते हैं. ओके, जैसे सोलर एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वैसे विंड मिल से हम जनरेट करते हैं विंड एनर्जी. ओके, और वो जो विंड एनर्जी है वो जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी. ओके, एंड वी यूज विंड एनर्जी टू जनरेट electricity. Okay students, the wind energy is also important source of energy. It is also renewable energy. That means these sources are always available. Okay, and wind energy is useful to generate
electricity. Okay, now here in this picture given the water resources. Okay, water resources, the water, and the water resources is also renewable energy. Water energy is used for drinking, irrigation, and also used for generate electricity. ओके, वाटर एनर्जी है उसका क्या यूज होता है? तो एक तो ड्रिंकिंग के लिए, सेकंड इरिगेशन यानी सिंचाई जो फार्म, एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, वाटर रिसोर्सेज के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी भी हम जनरेट कर सकते हैं. आपने डैम्स वगैरह देखा होगा. ओके, उसमें वहाँ पे हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. ओके, अभी हम लोगों ने 3 नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमने लर्न किया. ओके, अभी और उसके जो यूजफुलनेस है वो भी मैंने आपको बताया. ओके, नाउ नेक्स्ट activity 2. Now next activity 2. Read the following passage carefully. Okay, here are given one story about orange. Okay, let us start. The story of an orange. Okay, यहाँ पे आपको एक स्टोरी दी है, उसका जो टाइटल है वो है द स्टोरी ऑफ एन ऑरेंज. ये जो स्टोरी है वो ऑरेंज के बारे में. ओके, nobody knows exactly from where the orange came. Though Southeast Asia is thought to be its first home, but today it is grown in most of the warmer parts of the world. Okay, किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है कि ऑरेंज कहाँ से आते थे. ओके, साउथ ईस्ट एशिया वो लोग ऐसा सोचते कि वो उसका फर्स्ट घर है. ओके, बट आज के दिन वो वर्ल्ड के वार्मर पार्ट से जहाँ पे भी जो थोड़े गर्म एरियाज है वहाँ पे मोस्टली ग्रोन होते हैं. ओके, द ग्रीक्स एंड रोमन्स न्यू अबाउट द ऑरेंज. ओके, ग्रीक्स एंड रोमन्स को ऑरेंज के बारे में पता था, वो लोग जानते थे उसके बारे में. इट इज़ पॉसिबल दैट द ऑरेंज वॉज कैरीड फ्रॉम इंडिया टू वेस्ट एशिया एंड देन टू यूरोप. ओके, ये पॉसिबल है कि ऑरेंज को कैरी किया जाता था इंडिया से वेस्टर्न एशिया एंड वहाँ से यूरोप. ओके, टुडे द ऑरेंज इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेश फ्रूट इन इंटरनेशनल ट्रेड. Today, the orange is the most important fresh fruit in international trade. आज के दिन ऑरेंज जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेश फ्रूट है जो इंटरनेशनल ट्रेड में आता है. ओके, इंटरनेशनल ट्रेड यानी बिजनेस. ओके, इंटरनेशनल यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज में उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं वो सब कुछ. ओके, तो जो आज के दिन ऑरेंज है वो एक इतना इम्पोर्टेंट फ्रेश फ्रूट है इंटरनेशनल ट्रेड में. ओके, इंटरनेशनल ट्रेड. The 3 chief kind of oranges are 3 kind of oranges है. First one is the sweet or common orange. Okay, first one is the sweet or common orange. Second, the mandarin orange. Okay, the mandarin orange, MANDARIN, mandarin orange, and the sour and bitter orange. Okay, third, this is the new word for you, mandarin. Mandarin orange यानी कैसे orange? Mandarin means a small and sweet type of orange. Okay, जो छोटे छोटे होते हैं और sweet होते हैं वो orange को हम बोलेंगे mandarin orange. Okay, and the sour and bitter orange. Bitter यानी sour यानी खट्टा, bitter यानी कड़वा, bitter यानी कड़वा. Okay, of these, the sweet orange is the most important. Okay,
जो स्वीट ऑरेंज है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इट इज आफ्टर 3 years दैट द ट्री बियर्स फ्रूट्स। ओके, आफ्टर 3 years के बाद जो ट्रीज होती है उसमें फ्रूट्स आते हैं। ओके, एन इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ स्वीट ऑरेंज इज कॉल्ड द ब्लड ऑरेंज। ओके, जो स्वीट ऑरेंज है ओके उसको हम ब्लड ऑरेंज भी बोलते हैं। ओके, इट्स पल्प इज डीप रेड इन कलर एंड इट इज ग्रोन इन द मेडिटेरियन रीजन। ओके, उसका जो पल्प होता है, उसके जो अंदर का जो पल्प होता है वो डीप रेड कलर का है। दैट्स व्हाई वी कॉल ब्लड ऑरेंज। ओके, और वो जो ग्रोन होते हैं वो मेडिटेरियन रीजन में ग्रो होते हैं। The temple is an orange with a thin loose skin. It is a mixture of the mandarin and the sweet orange. Okay, उसकी जो स्किन होती है ऑरेंज की ओके वो थीन वो पतली होती है। ओके, और उस इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैंड्रीन एंड दी स्वीट ऑरेंज। ओके, वो किसका मिक्सचर है? मैंड्रीन एंड स्वीट ऑरेंज का। ओके, The sour orange is grown almost everywhere, especially in Spain. ओके, जो sour orange यानी जो खट्टे ऑरेंज है वो सब जगह पे ऑलमोस्ट ग्रो होते हैं। ओके, मोस्टली वो कहाँ पे होते हैं? स्पेन में। ओके, द चीफ यूज ऑफ दिस ऑरेंज इज टू मेक मार्मलेड सिंस इट इज टू बिटर टू बी ईटन एज अ फ्रूट। जब ये जो सोर ऑरेंज है वो जब बिटर होने लगते हैं तो वो लोग वहाँ के जो चीफ है वो क्या बनाते हैं? मार्मलेड। मार्मलेड मीन्स अ फूड आइटम मेड विथ ऑरेंजेस और लेमन्स, यानी वन टाइप ऑफ जैम। जैम आप लोगों ने देखा होगा। ओके, वन टाइप ऑफ जैम जैसा होता है कि जब ये खट्टे ऑरेंज जब कैसे हो जाते हैं? बिटर होने लगते हैं तब उसमें से क्या बना लगते हैं? मार्मलेड। ओके, जैम बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट The orange is a clean fruit. Okay, orange कैसा है? Clean fruit है। Anyone who touches it only touches the outer covering. Okay, कोई भी उसको टच करेगा तो हम उसके outer जो कवरिंग है उसको ही हम लोग टच करेंगे। ओके, विच कैन बी इजीली पील्ड ऑफ। इसकी वजह से हम इजीली उसको पील कर सकते हैं। पील करना यानी कि टेक ऑफ स्किन ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, यानी कि उसकी स्किन जो निकालते हैं हम ऊपर की, ये जो बनाना है, ऑरेंज है, तो वो सब के हम जो स्किन ऊपर की जो निकालते हैं उसको हम बोलेंगे पील। ओके, द थिक ऑयली एंड बिटर स्किन डज नॉट अलाउ इंसेक्ट टू गेट इनटू द ऑरेंज। ओके, इसकी जो थिक ऑयली और बिटर स्किन है उसकी वजह से उसका मोस्ट बेनिफिट क्या है कि वो इंसेक्ट को अलाउ नहीं करता। ओके, यानी कि वहाँ वो इंसेक्ट उसमें आते नहीं हैं। ओके, इनटू द ऑरेंज। ऑरेंजेस देयरफॉर आर इन डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसलिए ऑरेंज की डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड में है। हियर आई कंप्लीट दिस स्टोरी। ओके, लेट अस रिवाइज अगेन। ओके, ऑरेंज कहाँ से? उसका जो फर्स्ट फॉर्म है वो कहाँ से? साउथ ईस्ट एशिया। ओके, और जो वार्मर एरिया है वर्ल्ड का वहाँ पे मोस्ट ऑफ दी वो ग्रोन होते हैं। ओके, वो ये जो ऑरेंजेस है वो कैरिड फ्रॉम इंडिया टू वेस्टर्न एशिया एंड देन टू यूरोप। ओके, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेश फ्रूट इन इंटरनेशनल ट्रेड। 3 kind of orange है। फर्स्ट इज स्वीट और कॉमन ऑरेंज, सेकंड इज मैंड्रीन ऑरेंज, थर्ड इज सोर एंड बिटर ऑरेंज। ओके, स्वीट ऑरेंज इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड ऑरेंज because its pulp is deep red in color and it grow in Mediterranean region. देन जो सोर ऑरेंज है वो जब बिटर होने लगते हैं तो उसका एक जैम बनाते हैं। मर्मलेड यानी जैम, यानी कि उसकी एक फूड की एक आइटम मेड विथ ऑरेंज और लेमन, यानी कि इट्स वन टाइप ऑफ जैम। ओके, ओके, उसकी ऑरेंज की जो स्किन होती है वो कैसे होती है? ऑयली, थिक एंड बिटर स्किन। बिटर, थिक, ऑयली एंड बिटर स्किन डज नॉट अलाउ इंसेक्ट टू गेट इनटू द ऑरेंज। ओके, उसकी जो स्किन होती है उसकी वजह से इंसेक्ट जो होते हैं उसके दूर रहते हैं। ओके, उससे अंदर नहीं जा पाते, इसलिए उसकी ऑल ओवर वर्ल्ड में उसकी डिमांड है। ओके, हियर आर सम कीवर्ड्स वी विल डिस्कस नाउ। फर्स्ट वन इज ट्रेड। ओके,
First one is trade. Trade means business between two companies or countries. ओके मैंने बताया वैसे ही ट्रेड यानी कि बिजनेस, जैसे कि दो कंपनीज या तो कंट्रीज के बीच में जो होता है. मैड्रिन यानी अ स्मॉल एंड स्वीट टाइप ऑफ ऑरेंज. ओके सेकंड इज मैड्रिन, अ स्मॉल एंड स्वीट टाइप ऑफ ऑरेंज. थर्ड वन इज मार्मलेड. मार्मलेड इज मीन्स if a food item made with oranges or lemons. Okay, marmalade means a food item made with oranges or lemons. Next one is peel off. Peel off यानी to take off skin of fruits और vegetables. Fruits और vegetables की skin को हम जो निकालते हैं उसको peel करना बोलते हैं. Okay, students, today's topic complete here. Now some activities we will do in next lecture. Keep learning, stay home, stay safe student.